ठीक है, MgSO4.XH2O। इसको जब हम हीट करते हैं, it will break down into MgSO4 plus XH2O. ठीक है, this means 1 mole of this compound will produce 1 mole of this and X moles of this compound, right? Now the molecular weight of this compound can be computed to Mg24 and SO4 is 96. 120 plus molecular weight of this, but this is unknown, so it will become 18x. So molecular weight of this compound is going to be 120 plus 18x. Now once this is being heated, it will produce 120 gram of this and 18x gram of this. ठीक है, is it clear till now? Now again it is being said that 54.2 gram of this compound, 54.2 gram of this compound is being heated, and that is going to generate or dissociate the H2O molecule from MgSO4, and it is going to form steam. ठीक है, so if I'm going to heat 54.2 grams of this compound, that means how many moles am I actually heating? I'm heating 120 by 18x. इतने मोल्स को मैं हीट कर रहा हूँ, राइट? Yes, sir. और इतने मोल्स को अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो इसका कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा? दिस इनटू दिस, एक मोल से एक्स मोल बन रहा है, तो 54.2 बाई 120 प्लस 18x से दिस इंटू एक्स मोल्स बनेगा, राइट? और ये जो गैस निकल रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑफ 24.8 atm in a 2-liter cylinder at 127 degree. So number of moles, this much moles of steam generates pressure equal to 24.8 atm at temperature is equal to 127 degrees Celsius, that is 400 Kelvin, in a volume is equal to 2 liter. Now with this information we can apply ideal gas equation. N is equal to PV by RT, and N is this 54.2 x divided by 120 plus 18x. This is equal to PV 24.8 into 2 divided by RT, that is 0.082 into 400. Now this has to be solved, and
if we are going to do a cross multiplication, this being brought over here, 54.2, थोड़े से छोटे मोटे जो calculations है might be we can do over here, but rest will have to be okay. So it is going to be like this, 12.4, and this will become 100, and एक और यहाँ से कर सकते हैं 6.2, and this will become 0.041. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो this will become 6.2 divided by 4.1. So now we can do a cross multiplication on this into 4.1. X is equal to 6.2 into 120 plus 18x. यहाँ पर फिर से अभी भी हमारे पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है, जैसे ये 27.1 हो सकता है, this can become 3.1. so now अब कुछ भी कॉमन नहीं है, so we will have to solve it. So 4.1 into 27.1, this will be 8 और दूसरे 91 82 now so it is going to be 111.11x. और इस तरफ करेंगे तो we are going to get 372 plus 55.8x. 111.11 minus 55.8x is equal to 372, और x is equal to 372 divided by, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो become 31, और 11 10 में से 5 5, नहीं. So this is going to roughly give us a rough estimated value of maybe 6.9 something, कुछ तो आएगा इसका वैल्यू. ये 75 प्लस में रहता तो पूरे पूरे साथ हो जाता, 75 से छोटा है तो दिस इज गोइंग टू बी 75 77 पे पूरा साथ हो जाता, ठीक है. तो 77 ना हो करके ये 72 है, यानी 5 कम है, तो 55.1 0.1 से अगर 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 हो जाएगा. 377 में से 5.5 कम है तो रफली 6.9 के आसपास आएगा. बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स नंबर जो है ना, ये हमारा क्या रहेगा, दिस हैज टू बी इंटीग्रल वैल्यू, दिस कैन नॉट बी नॉन इंटीग्रल, ठीक है. तो एक्स को हम लोग 7 ले लेते हैं. इज इट ओके? इस चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन. आर यू guys getting it, or I have ever heard Yes, of sir. it? Water of hydration.
ठीक है। सो ये काउंट जो होता है ना, ये हमेशा इंटीग्रल रहेगा। इंटीग्रल मतलब काउंटिंग नंबर्स में 1 2 3 4 करके रहेगा। ठीक है। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। समझ में आया सारे लोगों को? यस सर। नोट किया हम लोगों ने? सर एक मिनट। इनफैक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। नोटेड। सर एक मिनट। डन सर। ओके। देखिए, देखिए, ये एक फॉल्टी बैरोमीटर है।
It is a faulty barometer. With some air entrapped. ठीक है. और सेकेंड चीज ये है, द लेंथ ऑफ ट्यूब above mercury length of tube above mercury remains same in all cases. Is it okay? और ऐसे कंडीशन में we have to find out what is the actual pressure in the third scenario when the measurement is 750 mm. Is it okay? क्वेश्चन समझ में आया? हेलो हेलो. Sir, can you show the question part? हाँ. Done, sir. So let us go to solution part. फर्स्ट वाले के लिए अगर हम देखेंगे, एक सेकंड रुको, यहाँ से मुझे ठीक है. सी यहाँ पर सपोज यहाँ पर मेरे पास हाइट जो है वो h है, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्यूब जो है वो कितना हो जाएगा? 748 plus h. This is total height of tube. Is it okay? ये फिगर ए है, ये फिगर बी Yes, sir. है और ये फिगर सी है. यहाँ पर हाइट क्या रहेगा? 748 plus h minus 736, that is h plus 12. Am I right? और यहाँ पर हाइट क्या रहेगा? h minus 2. बात समझ में आ रही है क्या हम लोगों को? अगर टोटल लेंथ यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में ना, द टोटल लेंथ above the mercury remains same in all the cases, right? तो यहाँ पर इसके ऊपर का लेंथ हमेशा सेम रह रहा है. ठीक है, इसके ऊपर का लेंथ हमेशा सेम रह रहा है. So this height is going to be how much? h plus 12. इसमें से basically height of
एयर कंटेनिंग, और ये वाला स्पेस जो है दिस इज बेसिकली समथिंग जहां पर कि एयर इंट्रैप्ड है, तभी ये फॉल्टी बैरोमीटर होगा। बिना एयर के इंट्रैपमेंट के ये फॉल्टी बैरोमीटर नहीं हो सकता है। हाइट ऑफ एयर कंटेनिंग स्पेस in B is equal to total height of tube above mercury level in tub minus length of mercury column. Is it okay? So this will become 748 plus H minus 736, that is H plus 12, या 12 plus H. Is it okay? Or height of air in C, height of air column in C is equal to total height of tube minus again length of mercury column, total height of tube above Hg level in tub minus length of mercury column. Okay, and this is going to be equal to again 748 plus H minus 750. So this is going to give us H minus 2. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई हम लोगों को। अब एक चीज यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझें कि एक्चुअल प्रेशर 755 है। हेलो, एम आई ऑडिबल? एक्चुअल प्रेशर 755 है, ठीक है, और यहाँ पर मर्क्यूरी कॉलम जो है ये 748 mm इंडिकेट कर रहा है। तो एक्चुअल प्रेशर और इस मर्क्यूरी कॉलम के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? 7 mm ऑफ Hg। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, और यहां पर डिफरेंस कितने का हुआ? 4 mm ऑफ Hg। राइट? Yes, sir. ठीक है, सो दैट सिंपली मीन्स ए में डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रेशर माइनस mercury column is equal to pressure due to entrapped air. Is it okay? इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा उतना ही प्रेशर ये बबल लगा रहा होगा, ये एयर जो इंट्रैप हुआ है वो लगाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, और तीनों केसेस के लिए ये चीज वैलिड होगा। तो ए के लिए प्रेशर ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर जो होगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू 755 माइनस 7 और 48, that is equal to 7 mm
of Hg. ठीक है. Pressure due to entrapped air. Pressure due to entrapped air in a. अब pressure due to entrapped air in B क्या हो जाएगा? Actual pressure minus height of mercury column, that is 740 minus 736, that is 4 mm of Hg. ठीक है. अब कंडीशन ए एंड कंडीशन बी में वी कैन अप्लाई बॉयल्स लॉ. Boyle's law between A and B. Boyle's law at A and B condition. See, the gas which is entrapped, that is going to remain same. The number of moles or amount of gas is not going to change, nor is the temperature going to change. ठीक है. हीट कर नहीं रहे हम लोग, सेम टेम्परेचर पे कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसा कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं हुआ है. दैट मीन्स वो कांस्टेंट है. ठीक है. सो 7 mm ऑफ Hg इंटू वॉल्यूम अगर लेने जाएंगे कंडीशन का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H इज इक्वल टू 4 mm ऑफ Hg कंडीशन बी का इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन H प्लस थिंक इट्स 12, राइट. अब सॉल्व कर लेंगे, mm ऑफ Hg कैंसिल हो जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू गेट 7H इज इक्वल टू 4H प्लस 48 और H इज इक्वल टू 48 by 3, that is 16 mm of mm. ठीक है. Am I making sense? Yes, sir. Very good. अब H की वैल्यू 16 अगर आ गई, तो कंडीशन C में, कंडीशन C, हाइट ऑफ एयर कॉलम will be 16 minus 2, that is 7 mm. Oh, that is 14 mm. Is it okay? Applying Yes, sir. Boyle's law between 1 and 3, yeah, A and C, or B and C, A and C, और B and C. ठीक है. किसी भी दो कंडीशंस के बीच में अगर हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, A और C करते हैं तो 7 mm इंटू mm ऑफ Hg इंटू area into H, which is nothing but 16, is equal to, let's P be the pressure, into area of cross section into 14. A cancel हो जाएगा, 7 2s of 14, sorry, A cancel होगा, 7 2s of 14 होगा, and 2 8 the 16 होगा. So pressure will become
8 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये प्रेशर किसका होगा? प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू entrapped एयर। ठीक है, बी एंड सी से भी लेंगे अगर लेते हैं, वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। बी में क्या है? H प्लस 12 दैट इज 16 प्लस 2 12 28। प्रेशर क्या था? 4 mm इंटू A इंटू 28 इज इक्वल टू 16 12 28 इज इक्वल टू P इंटू एरिया गुने 14। ठीक है, एरिया एरिया कैंसिल, 14 2s are 28, therefore P is equal to 8 mm of H। So whether we take these two equations or these two equations and apply the Boyle's law, we are going to get the same pressure for the entrapped air in condition C, due to entrapped air in condition C। ठीक है, सो अभी क्या हो गया? entrapped एयर की वजह से यहां पर प्रेशर क्या हो गया? दिस इज 8 mm of Hg, राइट। ये कितना है? 750 mm है, तो यहां पर कितना अप्लाई हो रहा होगा प्रेशर? दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। तो एक्चुअल प्रेशर क्या हो जाएगा? एक्चुअल प्रेशर इन सी इज इक्वल टू height of Hg column plus height of Hg column plus height of pressure due to entrapped air, pressure due to entrapped air, which is equal to 750 plus 8, that is 750 plus 8, that is 758 mm of Hg। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा। ऊपर से नोट कर रहे थे क्या हम लोग? हाँ सर। सो बाकी को नोट कर लो। दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करूं? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और एक्चुअली अगर हमने 1 मोल इसका लिया हुआ है, तो एज इट कीप्स ऑन ये क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिंग, द नंबर्स ऑफ मोल्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके एक से एक ये मिलेगा और आधा ये मिलेगा। तो ये जैसे इसका मान लो शुरू में 1 है, ये 0 0 है।
अभी इसमें से 0.4 यूनिट जो है वो 0.4 मोल जो है वो डिसोसिएट हुआ, तो 0.4 मोल डिसोसिएट होने के बाद ये कितना हो गया 0.6 मोल, ये कितना बनेगा 0.4 मोल, और ये कितना बनेगा 0.2 मोल। तो अभी टोटल मोल्स यहाँ पर कितने हो गए, पहले एक था अभी 1.2 हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। 0.4 के बदले मान लो जब 0.8 इसका डिसोसिएट कर जाएगा तब ये कितना रहेगा 0.2, ये कितना रहेगा 0.8, ये कितना रहेगा 0.4, ये कितना टोटल कितना हो जाएगा 1.4, राइट। जब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा यानी एक का एक हो गया तो ये एक हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा और ये 1.5। This is the maximum number of moles which will be there in the reaction mixture. This is the minimum number of mole that will be there in the reaction mixture vessel. ठीक है, इन बिटवीन बाकी इंस्टेंसेस पे रहेंगे अलग अलग टाइम पे। बात समझ में आ रही है। अभी यहां पर हमको इंफॉर्मेशन क्या हुआ है, सीधे डेंसिटी, राइट। करना क्या है हमको, सो डेंसिटी अगर हमको दिया हुआ है तो वी नो दैट pmw/rt is going to give me the molecular weight, and this molecular weight will correspond to what, average molecular weight, remember। Yes, sir. पहले किया हुआ था हमने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, राइट। जैसे 2 मोल हाइड्रोजन अगर हम 3 मोल हीलियम के साथ मिक्स करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना रहेगा 4 ग्राम, 3 मोल हीलियम का वेट कितना रहेगा 12 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 16 ग्राम। मोल्स कितने हैं 5 ग्राम, 5 मोल्स, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा 3.2 ग्राम्स, राइट। ऐसे ही निकालते थे ना, Yes, sir. याद है सारे लोगों को, या ये नहीं याद है तो एवरेज एटॉमिक वेट वाला तो याद ही होगा सारे लोगों को, जिसका जितना परसेंटेज या जिसका जितना फ्रैक्शन उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके उनके रेस्पेक्टिव वेट को ऐड करके और 100 से डिवाइड करना होता था, यानी टोटल से डिवाइड करना होता था। दैट इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होगा हमको वो चीज बताएगा। प्रेशर सपोज हमें पता है 1 atm, ठीक है। टेम्परेचर दैट इज ऑल्सो नोन टू अस, दिस इज इक्वल टू 900 Kelvin। So let us get into it. Density is 0.94 gram per liter. Pressure is equal to 1 atm. Molecular weight is equal to mw. RT 0.0821 into 900. Thus mw will come to us as 0.94 into 0. Not 0. Now we can settle it down for 8.21 into 9, right? 9 4 ja 36, 9 9 ja 81, 84, 8. So it will become 8.46 into 8.21. ठीक है, this is our average molecular weight. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट,
8.46 into 8.21, that is equal to 69.46. So 69.46 is the average molecular weight. अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग को इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा, जिससे हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, बाद में मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। निकालने का तरीका क्या होता है कि सेम लॉजिक, अगर इसमें से अल्फा 1 है और 1 में से अल्फा मोल अगर डिसोसिएट किया तो इधर कितना बचेगा, इधर कितना बनेगा, ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बाई 2 बनेगा मोल्स। ठीक है, अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ द सिस्टम निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स से। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जितना वेट हम इसका लिए हैं शुरू में, उतना ही वेट सिस्टम का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। इसका अगर हमने 1 मोल लिया है, ठीक है, अगर हमने 1 मोल लिया है अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, और SO3 का मतलब 80 हो गया, इट्स गोइंग टू बी 80 ग्राम, राइट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट इज 80, दिस इज 32, दिस इज 48, सो 80 ग्राम हो जाएगा। और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 80 ग्राम बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1 प्लस अल्फा बाई 2। तो 1 प्लस अल्फा बाई 2, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, यही इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हुआ। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दो मिनट, 69.46। तो इस 69.46 को वी कैन इक्वेट इट विथ 80 बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, और 1 प्लस अल्फा बाई 2 विल बिकम 80 माइनस 80 बाई 69.48 माइनस 1, मतलब -1 अभी नहीं आएगा, -1 इधर से, ये वाला 1 इधर जाएगा तो आएगा। ठीक है, so alpha by 2 will become 80 by 69.48 minus 1, that is equal to 80 minus 69.48 by 69.48. This will make 11.5252, 10.52 divided by 69.48। ठीक है, और अल्फा विल बिकम इक्वल टू 20.04 सॉरी 21.04 बाय 69.48। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन कितना आता है, सो दैट वी कैन सी 21.04 डिवाइडेड बाय 69.46, 0.3 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, which is fair enough. Alpha is 0.3. Degree of dissociation. This alpha is known as degree of dissociation. ठीक है, तो degree of dissociation is 0.3, और
इनको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स का पता होना हमको जरूरी है। दिस इज 1 माइनस दिस इज 0.7, दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.15, राइट। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.7 प्लस 0.3 प्लस 0.15, दैट इज 1.15। मोल फ्रैक्शन एक एक्स ऑफ SO3 क्या होगा, 0.7 बाई 1.15। x of SO2 will become 0.3 by 1.15. X of O2 will become 0.15 by 1.15. ठीक है। Is it okay? 0.7 divided by 1.15, that is equal to 0.61 approximately. This is 0.61, and then uh, 3 divided by 1.15, 0.26, 0.15 divided by 1.15 is equal to 0.13. 0.13. ठीक है। These are the mole fractions of these three segments. Am I clear till this point? Yes, sir. Okay. Last question. Last question till this segment. ठीक है। A balloon of diameter, a balloon of diameter 21 meter weighs 100 kg. Calculate its payload. Payload क्या होता है, एक्स्ट्रा वेट कैरिंग कैपेसिटी, वो लोड जो पे करेगा, ठीक है, दैट इज पेलोड। इफ इट इज filled with HE at 1 atm and 27 degrees Celsius, ठीक है। So this is balloon problem. Balloon 21 meter रेडियस, बलून के अंदर एयर है, एयर कौन सा है, हीलियम है, हीलियम एट 1 सर एटमॉस्फेयर। डायमीटर 21 मीटर है ना। अच्छा, डायमीटर 21 है, ठीक है, तो डायमीटर 21 कर लेते हैं। दिस इज 21 मीटर। इससे इसका वॉल्यूम आ जाएगा
ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना डिस्प्लेस किया हुआ है वो भी पता चल जाएगा, ये वॉल्यूम निकाल लेंगे तो। और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, हाँ, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ एयर से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ एयर का मास पता चल सकता है, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ, सॉरी डिस्प्लेस नहीं, वॉल्यूम ऑफ हीलियम जो इसके अंदर है उसका मास हम लोग को पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करके। ठीक है, दोनों का वेट डिफरेंस जो होगा, जो डिस्प्लेस्ड मास है और जो ये हीलियम का वेट है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव अस द एक्सटेंट और वैल्यू ऑफ बायंट फोर्स। बायंट फोर्स पता है हम लोगों को ना, कुछ भी चीज को पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ धकेलता है। बायंट फोर्स हम लोग भी हल्का फील करते हैं पानी के अंदर जा करके, दैट्स बायंट फोर्स। कितना हल्का फील करते हैं, जितना मास ऑफ वाटर हम डिस्प्लेस करते हैं। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना करेंगे, तो हमारा वॉल्यूम जितना है हम अंदर जाएंगे उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेंगे, और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, यानी ऑब्वियसली डिस्प्लेस्ड वाटर का कुछ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो मास होगा वाटर का, उतना ही मास हम लोग कम फील करेंगे, दैट इज बायंसी। ठीक है, यही होता है ना, एम आई यस राइट? सर। सो सेम बॉयंसी जो है वो यहाँ पर भी फील होएगा, एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी जो है, ये बलून का वेट जो है दैट इज गोइंग टू वर्क डाउनवर्ड 100 kg इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पर जो भी पेलोड हम डालेंगे, पेलोड अगर p है या मास p है पेलोड का, तो p इंटू जी। ठीक है, या फिर हम लोग सीधे कर लेते हैं, ये टोटल लोड जो है दैट इज 100 प्लस p इंटू ग्रेविटी। वेट ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हुआ माइनस वेट ऑफ हीलियम इन द balloon will be equal to this much. This will be the payload ना। See, वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हुआ यहां से, उसका जो वेट होगा दैट शुड बैलेंस द वेट ऑफ हीलियम कंटेन्ड इन दिस एंड द पेलोड अटैच्ड और द टोटल लोड अटैच्ड टू दिस, तभी ये सिस्टम फ्लाई कर सकता है, अदरवाइज फिर ये बैठने लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, जब तक वो बैलेंस रहेगा, और जब वो बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, मान लो बायंट फोर्स जो मास डिस्प्लेस हुआ है दैट इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, वेट ऑफ दिस प्लस वेट ऑफ बलून प्लस वेट ऑफ लोड, इन सबके वेट से जो डिस्प्लेस्ड एयर है उसका वेट ज्यादा है, तो इसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स रहेगा और ये ऊपर की तरफ उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, और ऊपर जैसे जैसे जाएगा एयर थिनर होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाती है एयर की, तो अब बैलेंस विल कम, जहां पर जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा, जैसे इस हाइट पर है, ग्राउंड से 500 मीटर की हाइट पर है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, तो वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस किया उससे मास जो डिस्प्लेस्ड हुआ एयर का वो काफी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है एक्सपेक्टेड से, मतलब इतना चाहिए, इतना होता तो ये नॉर्मल बैलेंस हो जाता, बट इतने से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। अब 1000 मीटर पर जब पहुंचा तो डेंसिटी कम हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हुआ उसका मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है एयर की। अब जब वो कम हो गया तो इट हैपेंड दैट मास ऑफ हीलियम प्लस ये 100 kg प्लस ये सारी चीजें बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, तो अब वो 1000 मीटर की हाइट पर बलून उड़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है? एम आई मेकिंग सेंस? हो गया? हेलो? यस सर। नहीं, Yes, यस sir. सर नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ बलून कितना होगा ये सबसे पहले निकालेंगे हम लोग,
that is 4/3 pi r cube. This is equal to, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज. सो मे बी कर लेते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 11, 21. So it is 11 into 21 into 21 meter cube. That's our volume. Next thing is, इतने वॉल्यूम में कंटेंट जो एयर रहेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू फाइंड. यानी यहाँ पर इतना वॉल्यूम, सो इतना वॉल्यूम ऑफ बलून अगर इतना है तो इतना एयर डिस्प्लेस हुआ. सो वॉल्यूम ऑफ displaced air is equal to how much? The same, right? Now moles of displaced air क्या होगा? This will be equal to PV is equal to nRT से हम निकालेंगे. तो N is equal to प्रेशर 1 atm इंटू वॉल्यूम. ये मीटर क्यूब में है, इसको एटीएम लीटर में अगर लेना है हमको तो इसको कन्वर्ट करना होगा लीटर में. 11 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 1000, ठीक है, 0.0821 इंटू एयर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ है बाहर के एयर का टेम्परेचर, तो 27 डिग्री सेल्सियस लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड 300 केल्विन. यहाँ पर बलून के अंदर के एयर का टेम्परेचर दिया हुआ है, बाहर का नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना. एयर का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमको नॉर्मल टेम्परेचर कंसीडर करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है. इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस में चीजें हैं, प्रोवाइडेड वो वेरिएबल फाइंड ना करना हो तो, ठीक है. अब वो वेरिएबल फाइंड करना है तब हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि टेम्परेचर भी, टेम्परेचर फाइंड करना और टेम्परेचर को हमने नॉर्मल अज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. So this will get cancelled, this will become 7 and it will be maybe 77 by into 21 और इसको 8.21 लिख सकते हैं और ऊपर में 100 कर लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज द मोल्स ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर. मोल्स मिल गया तो मोल्स से हमको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा या मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर. मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, 28.8. कहीं पे तो कैलकुलेट किया था हमने. मोल्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मोलर वेट ऑफ एयर, दैट इज इक्वल टू मोल्स हो गया 77 इंटू 21 इंटू 100 by 8.21 into 28.8 and this is grams. ग्राम्स को केजी में कैलकुलेट करना होगा हमको, 1000 से डिवाइड करना होगा, तो अल्टीमेटली 77 इंटू 21 बाई 8.21 इंटू 10 हो जाएगा, दिस मच केजी. अच्छा, इसमें 28.8 भी रहेगा ऊपर में, ठीक है. इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, जनरली मैं बोलता हूँ लास्ट में करो, ये लगभग लास्ट का ही स्टेप है, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है. अदरवाइज इसको इसी फॉर्म में भी रहने दे सकते हो, आखिरी स्टेप पर हम लोग करेंगे, बट मैं अभी के लिए कर देता हूँ, ठीक है.
77 into 21 into 2. 77, 21. 77 into 21 into 28.8. It is 46. Okay. Divided by 10 or divided by 8.2. 567.2. 567.23 kg. This is the mass of displaced air or mass of helium in balloon. ये क्या हो जाएगा? That will again be calculated like this only. ठीक है? मोल्स जो होगा, एयर का जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही मोल्स हीलियम का प्रेजेंट होगा. एम आई राइट? तभी सेम कंडीशन के ऊपर सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. नहीं तो फिर अगर करना है तो 1 atm इंटू सेम वॉल्यूम करेंगे डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम, तो मोल्स तो सेम ही आना है ना, राइट? इज इट ओके? मोल्स सेम आएगा ना, क्योंकि कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून, राइट? और वॉल्यूम ऑफ बलून हमने ये लिया हुआ है यहाँ पर. प्रेशर बाहर का 1 एटमॉस्फेयर है, अंदर का भी 1 एटमॉस्फेयर है. ठीक है? और टेम्परेचर 300 केल्विन बाहर का भी है और अंदर का भी है. ये 8 मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, सो दैट इज देयर. अरे यार, एक सेकेंड रुक जाओ. यहाँ पे शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दिया है. एक जीरो का गड़बड़ी कर दिया है. This should be 1000 only. यहाँ पे एक डेसिमल मतलब एक जीरो का मैंने गड़बड़ी कर दिया था. ये 1000 है, नीचे 300 है. ये दोनों जीरो से अगर इस डेसिमल को राइट में लेकर के आते हैं, एक्चुअली मैंने पहले कट कर दिया फिर किया है, तो कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने. आई कैन सिंपली डू इट लाइक दिस. इसको 1000 को एज इट इज रहने देता हूँ. 3 से 7 को कैंसिल किया और यहाँ पर डेसिमल को मैं शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ आ गया. सो 300 100 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएंगे और ऊपर वाला एज इट इज 7 से 11 मल्टीप्लाई होकर के 77. एक जीरो का गड़बड़ी हो गया है. दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट हियर. और ओके, this is going to not, I mean this will not be there. So डेसिमल एक और आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे. ठीक है? मोल्स ऑफ हीलियम इन बलून इनटू मॉलिक्यूलर, या इसमें तो एटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक होता है, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम. ठीक है? सो मोल्स हमारा यही सेम रहेगा. 77 इंटू 21 इंटू 1000 by 8.21 into 4 ग्राम
which will be equal to 77 into 21 into 4 by 8.21 kg. This can be calculated to be equal to 77 into 21 into 4 divided by 8.21. That is equal to 787. So this is 787.8 kg or half mass of balloon is equal to 100 kg. सो अभी क्या है, अगर इसका फिजिकल डायग्राम देखें तो यहां से मास जो गया है बाहर वो है 5672.3 kg. ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है क्योंकि ये चला गया है तो ये अप की तरफ फोर्स लगेगा. डाउन फोर्सेस क्या क्या है? डाउन फोर्सेस इज बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ helium 787.8 kg of helium, 100 kg of 100 kg of balloon and p kg of payload. ठीक है. So by balancing these two, और masses बोल लें या weights बोल लें या force बोल लें, ठीक है, तीनों में जी रहेगा तो फोर्स हो जाएगा, नहीं तो मास बैलेंस बोल सकते हैं. और P plus 100 plus P is P load plus weight of balloon plus weight of helium 787.8 kg is equal to total weight of displaced air. ठीक है, weight of displaced air is equal to sum of weight of payload, balloon and gas in balloon. ठीक है, and therefore P will come out to be 5672.3 minus 887.8, that is equal to 6. 4784.5. 4784.5 kg. So it can effectively carry the payload of equal to this much. इतना मास वो कैरी कर सकता है एज अ पेलोड. Am I making sense? हेलो. यस सर. ओके, ठीक है. अभी मैं एक दो चीजें आप लोग को बताता हूँ. एक छोटी सी चीज बता लेता हूँ अभी के लिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे हमारे ग्राहम. He did extensive work on diffusion and he found experimental finding
फाइंडिंग, क्या थी इनकी एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग? इन्होंने फाइंड किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब लीकेज और डिफ्यूजन का मतलब नॉर्मल पेनिट्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह गैस इन प्रेजेंस ऑफ गैस। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, अब सॉरी ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को आफ्टर सम टाइम, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, ठीक है। और अभी के लिए बस रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है और डिफ्यूजन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर यहाँ पर हमने गैस रखा हुआ है और यहाँ ओपनिंग से, एक छोटे से ओपनिंग से गैस बाहर निकलने लगती है, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। और यहाँ गैस रखा हुआ है और इसको किसी दूसरे गैस के साथ से ओपन करके और एक ट्यूब से कनेक्ट करके दूसरे वाले सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पर दूसरा गैस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर के गैसेस मॉलिक्यूल्स टहलते हुए इधर आएंगे और इधर के गैसेस मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, सच दैट partial pressure of this gaseous molecules become same in both the chambers, and similarly partial pressure of this gas should become same in these two chambers। तब तक ये चीजें एक दूसरे के तरफ मिक्स होती रहेंगी और ये मिक्सिंग का जो फेनोमेना होता है इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन में क्या था कि बाहर का प्रेशर जो है वो बहुत कम या जीरो रहता है, यहां से जब बाहर चीजें निकल रही हैं तो बाहर का ऑपोजिंग फोर्स जो होता है वो बहुत कम या जीरो रहता है, आइडियली जीरो रहता है तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आ रहा है बट इधर दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है जो इसके आने को रेसिस्ट करेगा, बट फिर भी ये आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसके खुद के टाइप के मॉलिक्यूल रेसिस्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मूवमेंट होता है बट अगेंस्ट सम प्रेशर, सम रेसिस्टेंस मूवमेंट होता है। यहां पर आउटफ्लो जो होता है अगेंस्ट निल और वेरी लो प्रेशर होता है, दैट इज इफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन होता है। उसने बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब चूंकि ये बाहर निकलने की टेंडेंसी है तो कितना मोल्स कितने टाइम में बाहर निकला ये रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा या इफ्यूजन होगा, राइट ना। तो उसने, खैर वो मैं फिर अभी बता ही रहा हूं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए he said that it is going to be inversely proportional to molecular weight of the particle which is diffusing, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रूट अंडर डेंसिटी भी हो सकता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो सेड दैट अगर इस चीज का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, किसी भी दो मतलब एक ही गैस का पार्शियल प्रेशर अगर कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर आल्सो, इट्स गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके फिर हमारा जो इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, rate is directly proportional to P by root under mw या P by root under density, ठीक है। अब रेट के लिए क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास, रेट कैन बी इक्वल टू चेंज इन मोल्स डेल्टा n और नंबर ऑफ मोल्स विच हैज गॉन आउट इन अ गिवन टाइम फ्रेम डेल्टा t, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज नॉट चेंजिंग, तो उस केस में हम लोग n के चेंज से निकालेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, या कितना मोल्स बाहर निकला या कितनी क्वांटिटी बाहर निकली। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर
n is going to become directly proportional to v. ठीक है, जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा तो n will become directly proportional to v, right? तो चेंज इन मोल्स जो होगा दैट कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाय इफ P and T, pressure and temperature, are constant, right? Then change in volume will be directly proportional to change in N. Am I making sense? Volume is directly proportional to moles. So change in volume will be directly proportional to change in moles. बलून है, बलून में एक छोटा सा होल कर दिया, इसका वॉल्यूम बाहर से कॉम्प्रेस होने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो वॉल्यूम चेंज जिस रेट पर हो रहा है या वॉल्यूम चेंज जितना हुआ उतना ही मोल्स, उसके प्रोपोर्शनल मोल्स ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर तो 1 atm है और अंदर का प्रेशर भी हमेशा 1 atm रहने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर चेंज नहीं Yes, sir. होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होते रहेगा, ठीक है ना? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन वो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है? दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इफ pressure and temperature are constant or are held fixed. अच्छा, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स रखा गया है तो दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर बाई डेल्टा टी, ठीक है? क्योंकि डेल्टा एन विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को हमने फिक्स रखा है, इज इट राइट? फिर से पीछे वाले वाल पे यहाँ जाते हैं। Yes, sir. इस बॉक्स या किसी चेम्बर या किसी ये फ्लास्क के अंदर हाई प्रेशर पे गैस रखा था, फिर इसको ओपन कर दिया, ठीक है? तो इसमें से गैस निकलने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा और उसकी वजह से प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। पार्टिकल्स कम हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन देते हैं और ये तीनों प्रोपोर्शनल किस चीज के रहेंगे? दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस थिंग इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो इफ्यूज कर रहा है, ऑफ द इफ्यूजिंग और डिफ्यूजिंग गैस, राइट? डिफ्यूजिंग गैस अपॉन रूट अंडर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है? या फिर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अपॉन रूट अंडर डेंसिटी ऑफ गैस। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन, अंडर सिमिलर कंडीशंस कंपेयर rate of diffusion of helium and methane. Can we do that? फटाफट। और आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी स्टार्टिंग विद
अभी तक जो सारे थे वो सारे हमारे क्या थे, ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंटल लॉज थे। अलग अलग लोगों ने जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कुछ लॉज हमें दे दिए। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू डेवलप अ थ्योरेटिकल मॉडल जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लेक्चर के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मटेरियल्स जो था, या स्टेजेस ऑफ या स्टेट्स ऑफ मटेरियल, वो हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है। और उस थ्योरेटिकल मॉडल को यूज करके वी विल ट्राई टू कोरिलेट different properties of molecules या molecular motions in order to derive all these sequential equations which we have got through experiments. ठीक है, so basically वो model is what I'm going to discuss, and वो model के discussion के बाद फिर हम लोग कुछ questions करेंगे, and then ideal gas thing will get over and we will enter into real gases, एंड रियल गैसेस की पढ़ाई करेंगे हम लोग थोड़े टाइम। इन शॉर्ट हमको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, रेट ऑफ He डिफ्यूजन बाय रेट ऑफ CH4 डिफ्यूजन। ठीक है, हुआ किसी का? सर 1 मिनट। ओके